یہ جو دھمکیاں مل رہی ہے, یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ہم یہاں آ کے پرامن رہ کے صرف یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے احتجاج کی کال دی نہیں ہے, ابھی تو ہم صرف آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ جب کالا کوٹ نکل آئے نا احتجاج پہ, آپ کا حشر نشر ہو جائے گا. یہ جو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے, پورے اس ملک کے عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے, 75 ایئرز آف ہسٹری کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے, نظام لرز رہا ہے. یہ نظام تو ہم بدل کر کے ہی رہیں گے. کالا کوٹ, وہ آپ کو کہتے ہیں نا, ہر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے جب کالا کوٹ میدان میں آ جاتا ہے, تو کالا کوٹ میدان میں آ چکا ہے. یہ جمہوریت کے لبادے کے اندر عامر ہے. یہ کہتے ہیں ہم جمہوری رویہ رکھتے ہیں. آپ جمہوری رویہ رکھتے ہیں اور پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے کو نہیں مانتے. کس طرح نہیں مانتے؟ آپ پاکستان کے نظام کی, پاکستان کے آئین کی, پاکستان کے دستور کی, پاکستان کی جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے کو نہیں مانتے تو پاکستان کی عوام آپ کی حکومت کو نہیں مانتے. پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے جو تحریر نامے ہیں ان کو مانیں. جو قانون آپ نے پاس کروایا ہے اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کو. پہلے بھی دے چکے ہیں, اور اس کے بعد عام انتخابات کے عمل کو 90 دن کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. پارلیمان سے مہر لگوا رہے ہیں, ایک ربر سٹیپ پارلیمان سے مہر لگا رہے ہیں کہ پارلیمان ہمارے ہر غیر آئینی, ہر غیر قانونی عمل جو ہے اس کو وضاحت دے, اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگائے کہ ہماری حکومت وقت عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے تو دنیا کا کون سا انویسٹر, دنیا کا کون سا سربراہ آپ کے ملک میں آنا چاہے گا جس ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے, جہاں ووٹ کے حق کو استعمال نہیں کر سکتے, جہاں آواز کو بلند کرنے کے اوپر آپ کو نظر بند کیا جاتا ہے, جہاں عوامی نمائندے انصاف مانگے تو ان کو برہنہ کیا جاتا ہے. کون سا قانون ہے, یہ کون سا نظام ہے؟ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان کے وکلا, پاکستان کی عوام جو اس ملک کے حاکم ہیں, وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس اور ان کے محترم ججز کا تحفظ کریں گے. اور مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آئین سے ماورا کوئی بات, کوئی عمل اس ملک میں لاگو نہیں ہونے دیں گے. اور اس امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ آئین و قانون کے مطابق 90 دن کے اندر اندر 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروائیں. وکلا تو ہیں ہی آئین و قانون کے محافظ. ہم نے 2007 میں بھی ایک تحریک چلائی تھی اور جس کو الحمدللہ ہم نے کامیابی سے امکنار کرا کر ایک ڈکٹیٹر کو بھاگنے پہ مجبور کیا تھا. اور آج بھی وہی حالات ہیں ملک میں, آئین کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. 90 دن کا کلیئر مینڈیٹ ہے, آئین کلیئرلی کہتا ہے کہ اسمبلی جب تحلیل ہو جائے تو آپ نے 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے, جس میں پہلے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, پھر اس پہ 100 موٹر لیا سپریم کورٹ نے, اور اس پہ چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنایا اور اس نے 3-2 سے فیصلہ دیا. یہاں تو سب سے جو پہلی وجہ ہے آنے کی, کالا کوٹ جو آپ کے پیچھے عمارت ہے, سفید عمارت, اس کے تقدس کا احترام انشور کرنے آئی ہے, آئین کی حفاظت کے لیے آئی ہوئی ہے. یہ جو دھمکیاں مل رہی ہے, یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ہم یہاں آ کے پرامن رہ کے صرف یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے احتجاج کی کال دی نہیں ہے, ابھی تو ہم صرف آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ جب کالا کوٹ نکل آئے نا احتجاج پہ, آپ کا حشر نشر ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, ہم صرف آئین کے ساتھ ہے. کالا کوٹ اس ملک کے آئین کے ساتھ ہے, اس ملک کے قانون کے ساتھ ہے. جو بھی اس ملک کا آئین توڑے گا اس کا حشر نشر ہوگا, وہ چاہے کوئی بھی ہو اس ملک میں. یہ جو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے, پورے اس ملک کے عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے, 75 ایئرز آف ہسٹری کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے, نظام لرز رہا ہے. یہ نظام تو ہم بدل کر کے ہی رہیں گے. کالا کوٹ, وہ آپ کو کہتے ہیں نا, ہر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے جب کالا کوٹ میدان میں آ جاتا ہے, تو کالا کوٹ میدان میں آ چکا ہے. اچھا, پی ڈی ایم الیکشن سے فرار جا رہی ہے, بھاگ رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں اور کیوں وہ ججز پہ پریشرائز کروا رہے ہیں اپنا فیصلہ, اپنا من پسند فیصلہ لینے کے لیے؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا ہے, ان کو اس بات کا بہت سویئر ڈر لگ گیا ہے. ان کے وہ کہتے ہیں نا, رگوں میں یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ جب الیکشن میں جائیں گے عوام, تو پورے کی پوری اس ملک کی, اس قوم کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان باری اکثریت, وہ کہتے ہیں نا 2/3 کی بجائے 3/4 سے آ رہا ہے. وہ تو زبان پہ ہے, ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی آپ دونوں اسمبلیاں توڑیں, ہم توڑ کے الیکشن کرتے ہیں. اسمبلیاں ٹوٹ گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتا, یہ ایشوز ہے, وہ ایشوز ہے. ملک کو ایون انہوں نے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, اور ملک کی سیکیورٹی, اس کی سوورنٹی کو آن دا اسٹیک کر دیا ہے صرف الیکشن میں نہ جانے کے لیے. میں ان کو یہاں پہ ایک کلیئر کٹ میسج دینا چاہتی ہوں, الیکشن ڈیلے کرے 1 مہینہ,
2 महीना जितना मर्जी डिले करते जाएंगे, खान साहब का ग्राफ उतना बढ़ता जाएगा और ये चीज़ उनके गले पड़ जाएगी। सर जिस तरह ये वाइट शर्ट है ना और वो वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी तरह जो आइन के जो अल्फाज है ना वो इस कोड की मानद है। जिस तरह इस कोड ने इस शर्ट को कवर दिया हुआ है, इसी तरह हम आज इस वाइट बिल्डिंग में बैठे हुए जजेस साहिबान और आइन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आए हैं और मुख्तदर हलकों को ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि हम आइन से मावरा कोई बात कोई अमल इस मुल्क में लागू नहीं होने देंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम देने के लिए आए हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाएं। अदरवाइज़ ये आप वकला का समंदर देख रहे हैं, इनसे टकराने की ना ही इस इम्पोर्टेड हुकूमत में हिम्मत है। इंशाल्लाह ये वीगो डाले वाले गुंडों को भी हम जवाब देंगे और जो भी छुपा हुआ है, जो भी वो अननोन नंबर्स या जो भी कहते हैं कि हम इंशाल्लाह सबसे मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं। अब 2 ही चीज़ें हैं, या तो हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे या इन जर्नलों को कानून के अंदर आना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वकला तो हैं ही आइन और कानून के मुहाफ़िज़। हमने 2007 में भी एक तहरीक चलाई थी और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से हमकिनार कराकर एक डिक्टेटर को भागने पे मजबूर किया था। और आज भी वही हालात हैं मुल्क में, आइन को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। 90 दिन का क्लियर मैंडेट है, आइन क्लियरली कहता है कि असम्बली जब तहलील हो जाए तो आपने 3 महीने के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराना है, जिसमें पहले लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, फिर उस पर 100 मोटर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया और उसने 3-2 से फ़ैसला दिया। उसके बाद जब एक उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया कि सदर डेट देगा, उधर से गवर्नर देगा, वो डेट्स देने के बाद भी इलेक्शन कमीशन उससे मुकर जाए और अपनी डेट दे दे और आइन की आप खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर दें और उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हम सिर्फ वेट कर रहे थे, अब आकर हमने क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज़ आ गया है तो अब हमारे जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक खान हैं उन्होंने बाकायदा परसों ऐलान किया कि अगर आइन के साथ छेड़छाड़ की और इलेक्शन वक्त पे ना हुआ तो वकला तहरीक चलाएंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार वो बिल्कुल मुत्तफिक हैं इस पे कि हम बिल्कुल डटे हुए हैं, आइन के लिए हम लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हम खड़े हैं और चीफ़ जस्टिस की भी हम दस्तो बाजू बनेंगे, वो हमारी रेड लाइन है। हम कोई भी साजिश जो चीफ़ जस्टिस के को दबाव डालने की या इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनने की गई तो हम वकला जो है ना इनको फिर 2007 वाला जो हमने इनको सबक सिखाया था ना वो हम इनको दोबारा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। के ऊपर एक मुनज़्ज़म हमला किया गया जो काबिल मज़म्मत है। देखिए पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी आइनी इदारों का, अदलिया का, पार्लिमान का, मुकन्ना का जो दायरा इख्तियार है, हदूद व क़यूद है वो तय है। कोई भी इदारा किसी दूसरे इदारे के ऊपर हावी नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की आला अदालत जो इंसाफ का मरकज़ है, पाकिस्तान की आवाम की बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है, उसको पाकिस्तान के आइन के अंदर आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 191 कहता है कि पाकिस्तान की आला अदालत के जो कवायद और ज़वाबित हैं वो आला अदालत ही तय करेंगे कि उन्होंने किस रूल्स के मुताबिक अपने अमल को आगे बढ़ाना है। तो कल आइनी शिक की मौजूदगी में एक बिल के ज़रिए पाकिस्तान के पार्लिमान के हदूद व क़यूद को, उनके पावर्स को, उनके रूल्स को अमेंड करना है, वो काबिल मज़म्मत है और गैर आइनी है। और पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ़ जस्टिस को इस किस्म के गैर आइनी कानून जो है उसको मावरा आइन डिक्लेयर करके उसे कलअदम करार देना चाहिए। हम भरपूर मज़म्मत करते हैं ऐसे इक़दामात की जहाँ पर वो लोग जो गैर आइनी तौर पर इक़्तिदार में आए हैं, जिन्होंने अपने 12 स्याह माह के अंदर पाकिस्तान की आवाम और अवामी नुमाइंदों के ऊपर मज़ालिम ढाए हैं, जिन्होंने हर वो इक़दाम किया है जो मावरा आइन है। और जब वो मुकम्मल नहीं था तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदालत के ऊपर हमला कर दिया। और क्यों हमला किया? क्योंकि पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ़ जस्टिस और मोहतरम जजेस इनकी ईमा के मुताबिक फ़ैसला नहीं दे रहे। और बात क्या है? 90 दिन की बात है। आइन के अंदर दर्ज है कि जब भी असम्बलियाँ तहलील होंगी 90 दिन की मुद्दत के अंदर इंतखाबात का अमल आगे बढ़ेगा। आइनी शिक के ऊपर अमल दरामद कराने की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और आप खुलेआम बरमला कह रहे हैं। मैं कहती हूं कि इसकी कोई नज़ीर नहीं है हमारे जमहूरी निज़ाम ने, आमिरों ने भी शायद ये नहीं किया था।
ये जमहूरियत के लिबादे के अंदर आमिर हैं। ये कहते हैं हम जमहूरी रवैया रखते हैं। आप जमहूरी रवैया रखते हैं और पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने कहते हैं कि हम आला अदालत के तहरीरनामे को नहीं मानते। किस तरह नहीं मानते? आप पाकिस्तान के निज़ाम की, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के दस्तूर की, पाकिस्तान की जमहूरियत की नफ़ी कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीरनामे को नहीं मानते तो पाकिस्तान की आवाम आपकी हुकूमत को नहीं मानते। अगर आपने ये नज़ीर रखनी है तो मुल्क के अंदर जंगल का कानून फैलेगा, मुल्क के अंदर लाकानूनियत फैलेगी। ये ना कीजिए। पाकिस्तान की आला अदालत के जो तहरीरनामे हैं उनको माने। जो कानून आपने पास करवाया है उसको कलअदम करार देना चाहिए। पाकिस्तान की आला अदालत को पहले भी दे चुके हैं और उसके बाद आम इंतखाबात के अमल को 90 दिन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक आईनी शिक है। ये तहरीरनामे की तवक्कुआत है और इसको पूरा करना हुकूमत वक्त के ऊपर लाजिम है। सर, तरमीम के लिए मैडम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो है नहीं है सख्त। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जहाँ तक आपने बात की कि आइन के अंदर तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, आपकी बात से मुकम्मल इत्तफाक करती हूँ। बिल्कुल आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। आपके पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं है, आपके पास एक मुकम्मल पार्लियामान नहीं है। आप उस पार्लियामान से कानून साजी करा रहे हैं जिस पार्लियामान की पाकिस्तान की आवाम की आंखों में और अखलाकी तौर पर हैसियत कम होती जा रही है। एक पार्लियामान जिसके अंदर यकतरफा कार्रवाई हो, जहाँ पर अपोजिशन के मेंबरान मौजूद ना हो, जहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन इनके टिकट होल्डर हो, उस पार्लियामान से कानून साजी करा कर आप बताते हैं कि आपके पास ये अखलाकी और कानूनी जुर्रत है कि आप सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को तब्दील कर सकें। आप बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकते। जहाँ तक बात की आपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की, देखिए उसके ऊपर हमाद अजहर कल एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि जो इन्होंने अब नई नज़ीर रखना शुरू कर दी है कि पार्लियामान को मदे मुकाबल कर दिया है पाकिस्तान की अदलिया के, यानी आपने इदारों के अंदर तसादुम जो है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ज़रूरत थी इलेक्शन एक्सपेंसेस का जो फ़ंड है, एक्सपेंडिचर है, उसको पार्लियामान से पास करवाने की? ये तो इल्तवा की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन एक्सपेंसेस का जो एक्सपेंडिचर होता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। आर्टिकल 84 के अंदर वाज़े तौर पर वो दर्ज है कि किस तरह उसको आप पार्लियामान के अंदर पेश नहीं करते, उसकी मंजूरी काबीना देती है। पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल ना झोंकी और हमें ना बताइए, क्योंकि हम भी हुकूमत कर चुके हैं। हम जानते हैं कि आपने अगर पैसे निकालने हैं, अगर इलेक्शंस के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पैसे निकालने हैं तो आपके पास ये कानूनी रास्ता है। पार्लियामान के अलावा ये पार्लियामान से मोहर लगवा रहे हैं, एक रबर स्टैम्प पार्लियामान से मोहर लगा रहे हैं कि पार्लियामान हमारे हर गैर आइनी, हर गैर कानूनी अमल जो है उसको वजाहत दे, उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाए। और ये बहुत ही अफसोसनाक है। इससे पहले कभी भी किसी जमहूरी दौर के अंदर किसी हुकूमत वक्त ने, किसी आमिर ने भी इस तरह पार्लियामान को अदलिया के मदे मुकाबल नहीं खड़ा किया था। आप कौन सी नई नज़ीर रख रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं आवाम को? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? दुनिया के दूसरे ममालिक को शर्म आती है, नदामत से सर झुकता है कि हमारी हुकूमत वक्त अदालत का फ़ैसला नहीं मानते तो दुनिया का कौन सा इन्वेस्टर, दुनिया का कौन सा सरबराह आपके मुल्क में आना चाहेगा जिस मुल्क के अंदर जंगल का कानून है, जहां वोट के हक़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां आवाज़ को बुलंद करने के ऊपर आपको नज़रबंद किया जाता है, जहां अवामी नुमाइंदे इंसाफ मांगे तो उनको बरहना किया जाता है। कौन सा कानून है ये? कौन सा निज़ाम है? इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की आवाम जो इस मुल्क के हाकिम हैं, वो पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस और उनके मोहतरम जजेस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इंशाअल्लाह कानून और आइन जीतेगा और पाकिस्तान की आवाम की फतह होगी। बहुत शुक्रिया।